Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also. That will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ डैश। तो अभी हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायमंड जुबली देखने को मिली थी। 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए इनके इस्टेब्लिशमेंट को। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो 28 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट, और इस साल 2024 में टोटल ऑफ 75 ईयर्स इसके पूरे हो गए हैं। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहेंगे? वो हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी, राइट। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में इन न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर पूछा जाए पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने थे, वो थे हरीलाल जे कानिया जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच टू स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मॉडिफाइड PKC ERCP लिंक प्रोजेक्ट। तो रिवर का वाटर शेयर करने के लिए एंड मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, इन दोनों स्टेट्स में इनके डिस्ट्रिक्ट्स में फॉर इरिगेशन, फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ एंड वाटर के ड्रिंकिंग के लिए पानी की सुविधा पहुंच सके, इसीलिए यहाँ पर ये MOU साइन किया गया। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान ने मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ ये MOU यहाँ पर साइन किया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश एंड राजस्थान ने ये MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ। एंड ये बेसिकली क्या है? इंडस्ट्रियल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने के लिए इन द 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, मालवा एंड चंबल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। यहीं पे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, अब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा जी। ठीक है। गवर्नर कौन रहेंगे यहाँ पर? कलराज मिश्रा। फिर इसी के साथ साथ डांस की बात करें तो यहाँ पर 2 डांस याद रखेंगे, घूमर एंड चारी डांस हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सादा तानसीक। सादा तानसीक ये इनॉग्रल एडिशन है अभी एक एक्सरसाइज का। इनॉग्रल कहें या फिर फर्स्ट एवर एडिशन बोले। आर्मीज़ के बीच में यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला, मतलब इंडियन आर्मी और सऊदी अरेबिया की यहाँ पे आर्मी के बीच में हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला इन दिस एक्सरसाइज सदा तानसीक। फिर आ जाता है लोकेशन, कहाँ रहेगी, कहाँ एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? महाजन, राजस्थान में ये इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, करेक्ट। और इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। सऊदी अरेबिया की अगर बात की जाए तो कैपिटल क्या रहेगी सऊदी अरेबिया की? वो है रियाद। ठीक। करेंसी क्या रहेगी? सऊदी रियाल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनॉग्रल एडिशन था, मतलब पहला एडिशन था
सादा तानसीक एक्सरसाइज का 29 जनवरी को स्टार्ट हुई, 10 फरवरी तक ये एक्सरसाइज चलेगी। एंड कहाँ पर चल रही है? महाजन राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट है NSRCEL IIMBM, जो कि एक इंस्टीट्यूट है, ये नेशनल नादाथुर एस राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग। ये कहाँ पर है? IIM बेंगलोर में है। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया सिडबी के साथ, ताकि जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स है ना, उनकी फंडिंग की जा सके, राइट, उनको हेल्प की जा सके, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को, ताकि वो अपना ग्रो कर सके। ये जो NSRCEL है, इन्होंने अभी तक 1600 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स को यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किए इन द लास्ट 2 डेकेड्स। एंड सिडबी हैज़ पार्टनर्ड विद वेरियस इंडियन इंक्यूबेटर्स फॉर सीड फंडिंग ऑफ टेक स्टार्टअप्स इन वेरियस फील्ड, जैसे हेल्थ केयर, डिफेंस, इनोवेशन, रूरल इम्पैक्ट, R&D एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं बेसिकली, उनको यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स एंड एम्बर ग्रुप। इन दोनों के बीच में भी एक अभी MOU साइन हुआ, या फिर इनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ, ताकि जॉइंट स्पेशल पर्पस व्हीकल को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना, ये अपना एक नई फैसिलिटी सेटअप करेगी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर क्रिटिकल रेलवे कंपोनेंट्स एंड subsystems used in the manufacture of railway and metro coaches, right? तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स एंड एम्बर ग्रुप्स मिलके यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स, सब सिस्टम्स को डेवलप करेंगे, राइट? नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग द 69th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स विच फिल्म हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड। तो ट्वेल्थ फेल ने यहाँ पे 5 अवार्ड जीते, जिसमें से बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड 12th फिल्म मूवी को मिला। ठीक है, फिर बात करें तो ये जो आपके हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स थे, 69th एडिशन था इनका, 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स। लोकेशन क्या थी, कहाँ पर हुए? ये जिफ्ट सिटी में हुए। जिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में हमें ये देखने को मिलते हैं, राइट, जिफ्ट सिटी में। एंड 27 एंड 28 जनवरी को ये ऑब्जर्व करे गए थे। गुजरात की बात हो रही है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन रहेंगे? आचार्य देवव्रत। फिर बात करें नेशनल पार्क की, तो गिर नेशनल पार्क एंड ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं विच एडिशन ऑफ नेशनल वोटर्स डे वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व। तो नेशनल वोटर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं, याद रखेंगे, 25 जनवरी को, राइट। एंड अभी रिसेंटली 14th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया नेशनल वोटर्स डे का 25 जनवरी को, ठीक। और वोटर अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का जो एक योगदान है कि सारे इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करा के तरीके से यहाँ पे कराया जाता है, उनको यहाँ पे सम्मान देने के लिए भी ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेंगे? राजीव कुमार, करेक्ट। इलेक्शन कमिश्नर्स कौन रहेंगे? अनूप चंद्रा पांडे, अरुण गोयल। एंड इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं 14th नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू ने कुछ अवार्ड्स प्रेजेंट किए यहाँ पर। एंड 25 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वोटर्स डे, जो इस बार 14th नेशनल वोटर्स डे था। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी रिसेंटली कोमोरोस के प्रेसिडेंट को वापस से इलेक्ट कर लिया गया टू द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, अजाली आसुमनी। ये इनका 4th टर्म रहेगा एंड 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा। 2029 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। एंड सिंस 1999 कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली आसुमानी यहाँ पर अपना रूल कर रहे हैं एज द प्रेसिडेंट, राइट। तो इनका ये अब 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। तो ईरान के द्वारा अभी 3 सैटेलाइट्स को साइमल्टेनियसली लॉन्च किया गया यूजिंग देयर रॉकेट, जिसका नाम है सिमोरगढ़ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 3 सैटेलाइट्स, इनका क्या नाम रहेगा? महादा, केईहान 2 एंड हातेफ 1। ये तीनों सैटेलाइट का नेम भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि केईहान 2
ये सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है या किस कंट्री की ये सैटेलाइट रहेगी, तो ये ईरान की रहेगी। सिमिलरली मादा किस कंट्री की सैटेलाइट है, तो ये ईरान की सैटेलाइट रहेगी, राइट। एंड 2024 की ये सेकंड सैटेलाइट लॉन्च रहेगी ईरान की। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, ईरान की कैपिटल पूछूं तो मैं क्या रहेगी, ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। ठीक है, ईरान की कैपिटल तेहरान और करेंसी ईरानियन रियाल यूज किया जाता है यहाँ। नेक्स्ट आ जाता है उस इंडियन नेवी का नाम, उस इंडियन नेवी के द्वारा भी एक इंडियन नेवल शिप को डीकमीशन किया गया, उसका नाम बताओ। तो इंडियन नेवी ने आईएनएस निरूपक को भी डीकमीशन कर दिया आफ्टर 38 ईयर्स ऑफ सर्विस, राइट। ये आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको डीकमीशन किया गया। 1981 जून के महीने में जीआरएससी के द्वारा इसको कमीशन किया गया था एट कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये याद रखेंगे। और अब 38 साल इसकी सर्विस के बाद इनको यहाँ पर डीकमीशन कर दिया गया है आईएनएस निरूपक को, इंडियन नेवल शिप निरूपक को। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देख सकते हैं इंडियन नेवी ने डीकमीशन कर दिया आईएनएस निरूपक को एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आफ्टर 38 ईयर्स ऑफ द सर्विस। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले याद रखेंगे हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली जेनिक सिनर, इन्होंने मेंस कैटेगरी मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। अरियाना सेबलंका, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। 112वां एडिशन हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन का। कहाँ पर हुआ था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिला, राइट। मार्क करके चलेंगे। तो मैन सिंगल टाइटल जेनिक सिनर, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से बिलोंग करते हैं। एंड बेलारूस की अरियाना सेबलंका ने वीमेन सिंगल टाइटल को यहाँ जीत लिया है। एंड हार्ड कोर्ट पर हम ये खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे, एंथनी एल्बनीज। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट आ जाते हैं फुटबॉल पर। तो अभी ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने ओडिशा फुटबॉल क्लब को हरा दिया इन द फाइनल्स, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था, टू विन द कलिंगा सुपर कप। अगर पूछा जाए कि कलिंगा सुपर कप ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो कलिंगा सुपर कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और इन्होंने इस कलिंगा सुपर कप को किसने जीत लिया है, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। ये इनकी पहली विक्ट्री रहेगी इन द लास्ट 12 ईयर्स, और ये 3-2 से इन्होंने इस मैच को जीत लिया। भुवनेश्वर ओडिशा में इसका फाइनल हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 30 जनवरी को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। 26 जनवरी को ऑब्जर्व करेंगे, पहली बार फर्स्ट टाइम इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, इनॉग्रल एडिशन रहेगा इसका। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ताकि अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके अबाउट टुवर्ड्स अ फेयर एंड इंक्लूसिव ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ताकि इससे लोगों को एंड प्लेनेट को बेनिफिट मिल सके, राइट। और 26 जनवरी ही याद रखेंगे 15वीं एनिवर्सरी होती है IRENA की। IRENA क्या है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़। तो अभी शरद चौहान ये नए सेक्रेटरी बन गए हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के, राइट। आई रिपीट, शरद चौहान ये नए सेक्रेटरी बन गए हैं ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ये रिप्लेस करेंगे राजीव वर्मा को, जो 1992 बैच के IAS ऑफिसर है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान इन्होंने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ, ताकि वाटर को इंडस्ट्रियल वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंच सके इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ दीज टू स्टेट। फिर एक इनॉग्रल एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हुआ सादा तानसीक, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, पहली बार ये एक्सरसाइज हुई है, फर्स्ट एडिशन है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। और कहाँ पर हुई, लोकेशन रहेगी राजस्थान। देन NSRCEL IIM बैंगलोर, ये इन्होंने सिडबी के साथ टाइप करा, ताकि जो टेक्नोलॉजी फंड स्टार्टअप्स है ना, उनको यहाँ पे फंड करा जा सके, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को फंड कराया जा सके, उनकी फाइनेंसिंग में हेल्प करी जा सके टू ग्रो दैम। देन टीटागढ़ रेल सिस्टम्स एंड एम्बर ग्रुप, इन्होंने जॉइन हैंड्स किए टू डेवलप जॉइंट स्पेशल पर्पस व्हीकल। दैन 69th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो 12th फेल एंड एनिमल, इन दोनों ने 5 अवार्ड जीते। बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर का रहेगा आपका 12th फेल।
देन 14th नेशनल वोटर्स डे की बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी यहाँ पे अवार्ड्स प्रेजेंट करे कुछ। देन कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली ओसुमनी, इनको वापस इलेक्ट कर लिया गया है एज द 4th टर्म प्रेसिडेंट ऑफ कोमोरोस, और ये 2029 तक इस पोजीशन पे रहेंगे। देन ईरान ने भी साइमल्टेनियसली 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया यूजिंग सिमोरगढ़ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और 3 सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया। देन इंडियन नेवी ने डीकमीशन कर दिया INS निरूपक को एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, जेनिक सिनर मेंस कैटेगरी में विजेता रहे, आर्याना सेबलंका वीमेंस कैटेगरी में। देन ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने कलिंगा सुपर कप को जीत लिया बाय डिफीटिंग ओडिशा इन द फाइनल। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे 30 जनवरी को। पहला फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया 2024 में। एंड शरद चौहान यहाँ पे नए सेक्रेटरी बन गए हैं ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट मैं ला सकूं। नोट्स ज़रूर बनाया करो, नोट से रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। जो चीज़ नहीं आती, जो चीज़ नहीं लग रही है, नोट कर लो। तो अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पर। रिवीजन के भी नोट्स बनाना, जो चीज़ नहीं याद आपको, पुरानी चीज़ हो गई है आपके नहीं याद, तो उसके नोट ज़रूर बनाना। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेडियम द 22 फीट स्टैचू ऑफ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर वॉज अनवेल्ड इन नवंबर। तो किस स्टेडियम में? वो स्टेडियम था मुंबई महाराष्ट्र में। तो स्टेडियम का नाम रहेगा वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का एक 22 फीट स्टैचू को अनवेल किया गया था। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन भी अपॉइंट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि नेशनल यूथ अवेयरनेस क्रिएट करा जा सके, या फिर हम बोले इलेक्शन से रिलेटेड हम अवेयरनेस क्रिएट करा सके अमंग द यूथ। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली F1 मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स हुई थी। किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ये ड्राइवर रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे कौन आए? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन UK से, करेक्ट। और ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। ये 2024 से में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। इंडियन प्रेसिडेंट इन्होंने इनॉग्रेट किया 5th मेघालय गेम्स को। पैट क्यूमिंस एंड दीप्ति शर्मा इन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर डिक्लेयर करे गए हैं। ये योगेश सिंह इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन मेंस 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल। R प्रज्ञनंदा ने सरपास किया विश्वनाथ आनंद को टू बिकम द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। रोहित शर्मा बिकेम द मोस्ट प्रोलिफिक T20 इंटरनेशनल सेंचुरियन। साउथ अफ्रीका होस्टेड ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। टाटा ग्रुप टू कंटिन्यू IPL टाइटल स्पॉन्सर अंटिल 2028। रवि शास्त्री ने रिसीव किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। टाई जू यिंग इन्होंने क्लिंच किया फर्स्ट वीमेन सिंगल टाइटल एट इंडिया ओपन। मैड्रिड ने होस्ट किया स्पेनिश F1 ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम 2026। फिर साउथ अफ्रीकन बैटर हेनरिच कैलेसन इन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ज़ेवरेव लेड जर्मनी इन्होंने ईगा स्वातिक को बीट किया टू विन द यूनाइटेड कप। FIH एंड वाईकॉम 18 के बीच में 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर मीडिया राइट्स। न्यूजीलैंड ने अपॉइंट किया एड्रे एडम्स को एज देयर बॉलिंग कोच फॉर देयर क्रिकेट टीम। मध्य प्रदेश एमर्ज करके आता है एज द ओवरऑल चैंपियन फॉर द फर्स्ट एवर बीच गेम्स, जो कि दीव में हुए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पूछ लेंगे फर्स्ट एवर बीच गेम्स कहाँ पर हुए थे अभी, तो ये दीव में हुए थे। देन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शॉन मार्श इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया एंड रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट मेंस प्लेयर टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंडिया फिनिश्ड सेकंड इन द मेडल टैली विद डैश मेडल्स इन द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन साउथ कोरिया अक्टूबर से नवंबर। तो इंडिया की सेकंड पोजीशन आ रही है विद हाउ मेनी मेडल्स? विद अ टोटल ऑफ 55 मेडल्स, करेक्ट। और इस 55 मेडल से अगर हम देखें तो कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज थे? 21 सिल्वर और 21 गोल्ड, 21 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे रहेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाता है फिर मेडल टैली में? तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है चाइना, जिसने टॉप किया इन दिस मेडल टैली विद अ टोटल ऑफ 76 मेडल्स। नेम द एक्टर हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज UPI सेफ्टी एम्बेसडर ऑफ NPCI। NPCI के UPI सेफ्टी एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया? काफ़ी फेमस एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, राइट। ये NPCI के
अभी रिसेंटली यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं, ताकि सेफ्टी जो है यूपीआई की उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। एंड हम जानते हैं यूपीआई कितना एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन एक मेथड है जिससे हम पेमेंट की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इजीली, एंड इसको ग्लोबल स्केल तक ले जाने के लिए यहाँ पर ये सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो कौन किनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? वो रहेंगे वेंकट नागेश्वर चलासनी जी, राइट। एंड ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, मार्क करके चलेंगे, ठीक है। ये रिप्लेस किनको करेंगे? एनएस वेंकटेश को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। एंड एनएस वेंकटेश ये 2 टर्म तक कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पे सर्व कर रहे थे ऑफ 3 ईयर्स ईच, मतलब 6 साल के लिए। अक्टूबर 2017 से ये इस पोजीशन में थे। हु हैज़ रिसेंटली वन F1 साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? वो है मैक्स वर्स्टैपन, राइट। साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, एंड ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक। सेकेंड पोजीशन पे कौन आए? मैकलेरन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस, ये यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेट टीम दैट हैज रिसेंटली वन देयर फर्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 23-24 टाइटल। तो पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल जीतने वाली वो टीम कौन सी बन गई है? वो है आपकी पंजाब। इन्होंने पहली बार इस टाइटल को जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? तो ये क्रिकेट से बिलोंग करती है। एंड पंजाब की क्रिकेट टीम ने किनको फाइनल में हराया? बड़ौदा की टीम को फाइनल में हराया टू विन दिस मैच। लोकेशन क्या रहेगी फाइनल मैच की, कहाँ पर हुआ था? तो मोहाली, पंजाब में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिर, विच कंट्रीज टेनिस टीम हैज़ रिसेंटली वन डेविस कप बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल्स। तो डेविस कप आपका किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? तो ये टेनिस से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड विच कंट्रीज टेनिस टीम रिसेंटली वन द डेविस कप? ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा के। तो इटली की टीम ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा के डेविस कप जीत लिया है। और इटली से रिलेटेड एक याद रखेंगे, इंडिया और इटली के बीच में MOU साइन हुआ ताकि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो सके, कल्चर एक्सचेंज हो सके। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में लोगों का आना जाना होगा, राइट, जैसे स्टूडेंट्स वहाँ चले गए, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ गए, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के वो उधर चले गए, उधर के यहाँ गए, तो ये स्टूडेंट एक्सचेंज कंपनी एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, तो कल्चर का एक्सचेंज बढ़ेगा। इसी के लिए यहाँ पे एक MOU साइन किया गया इन दोनों कंट्रीज़ के बीच। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वर रिसेंटली सेटल्ड फॉर सेकंड प्लेस इन द मेंस डबल ऑफ लीनिंग चाइना मास्टर्स 2023, जो कि चाइना में हुआ। तो इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग सेठी, ये वो मेंस डबल प्लेयर हैं जिनकी पोजीशन रही सेकंड इन द लीनिंग चाइना मास्टर्स, जो कि अभी चाइना में हुआ था। फिर लीनिंग चाइना मास्टर्स की बात करें तो मेंस कैटेगरी में किन्होंने यहाँ पे जीता? कौन विनर रहे? कोदाई नराओका, राइट, ये जापान से बिलोंग करते हैं। एंड वीमेन कैटेगरी में यहाँ पे कौन विजेता रही? वो है शेन यू फी, ये चाइना से बिलोंग करती है। ये मित्र शक्ति सेम एक्सेस क्वेश्चन आ गया, तो फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 14th एडिशन ऑफ द इंडिया USA जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार वॉज कमेंस्ड ऑन 21 नवंबर 2023। तो 2023 में अभी एक एक्सरसाइज हुई थी वज्र प्रहार, किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई? इंडिया एंड USA के बीच में हुई। 14th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे पूछ लिया गया है आपसे लोकेशन क्या रहेगी, तो उमरोई में हुई थी। उमरोई कहाँ पर है? मेघालय में, राइट। तो राइट ऑप्शन 5 बनता आपका। ये 3 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज थी, 21 दिन लंबी आपकी एक्सरसाइज चली थी। 21 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। और एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का कौन सा एडिशन था? तो ये 16th एडिशन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडियन कॉन्टिजेंट फिनिश्ड सेकंड इन द मेडल टैली विद डैश मेडल्स इन द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। तो इंडियन कंटिजेंट ने सेकंड फिनिश किया, इंडिया सेकंड आया। कितने मेडल टैली, कितने मेडल्स के साथ? 7 मेडल के साथ। वहीं पे साउथ कोरिया ने टॉप किया इन दिस फर्स्ट पोजीशन विद
11 मेडल्स। इंडिया की बात करें 7 मेडल्स में से 6 गोल्ड थे, 2 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज था। हम बात कर रहे हैं आर्चरी की, ठीक है, आर्चरी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, और इंडिया की परनीत कौर ने यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीते, याद रखेंगे। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर जो चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो कौन रहेंगे, केएस मूर्ति, कोपू सदाशिव मूर्ति, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने भेल के। करेक्ट। ये किनको सक्सीड करेंगे, नालीन सिंघल को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड नालीन सिंघल इस पोजीशन में सिंस जुलाई 2019 से थे। एंड कोपू सदाशिव मूर्ति इस पोजीशन पे कब तक रहेंगे, 28 फरवरी तक 2027 में इस पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं आरबीआई के रिसेंटली, वो है मनोरंजन मिश्रा। मार्क करके चलेंगे, मनोरंजन मिश्रा। एंड मनोरंजन मिश्रा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के, राइट। ये 3 डिपार्टमेंट संभालेंगे, एनफोर्समेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU with ArcelorMittal Nippon Steel India to establish a high performance center in खो-खो। तो एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर खो-खो के लिए, ताकि खो-खो में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, ट्रेन हो सकें, इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिए जिसके, इसीलिए यहाँ पर किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी ArcelorMittal निप्पन स्टील के साथ टाई अप किया, तो ओडिशा। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, इन नवंबर रोहित शर्मा ये हाईएस्ट रन स्कोरर कैप्टन बन गए इन अ सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन। इन्होंने कितने रन स्कोर किए, तो इनका जो स्कोर का टोटल रहेगा वो है 597 रन्स इन द मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। फिर इसी के साथ साथ रोहित शर्मा को याद रखेंगे, इन्होंने टॉप किया विद द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन द ओडीआई वर्ल्ड कप विद अ टोटल ऑफ 54 सिक्सेस। फिर रोहित शर्मा वो 5th इंडियन भी बन गए हैं, 5th इंडियन जिन्होंने 18,000 रन्स यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर किए। 5th इंडियन, तो पहले थे सचिन तेंदुलकर, फिर राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, फिर विराट कोहली एंड अब रोहित शर्मा। हु हैज़ रिसेंटली वन F1 लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन नेवादा USA। तो किन्होंने अभी F1 लास वेगा ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, तो ये भी जीता है मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन पे कौन रहे, चार्ल्स लेसलर, ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, राइट, और ये मोरक्को से बिलोंग करते हैं, चार्ल्स लेसलर। और थर्ड पोजीशन पे कौन आ गए, सर्जियो परेस, ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं एंड ये भी रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेम द टेनिस प्लेयर जिन्होंने अभी जीता वीमेन सिंगल टाइटल एट द 2023 GNP सुग्रोस वीमेंस टेनिस एसोसिएशन टाइटल बाय डिफीटिंग जेसिका पेगुला फ्रॉम USA इन द फाइनल्स। तो ये हैं ईगा स्वातिक, पोलैंड से बिलोंग करती हैं, इन्होंने अभी अपना वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है एट द GNP सेग्रोस वीमेन टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। ईगा स्वातिक याद रखेंगे, ये जस्ट 22 साल की है। नेक्स्ट, इन नवंबर हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने अनाउंस किया फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो कहाँ पर होगा, तो पहला फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुआ वो दिल्ली में हुआ। मेडल्स दिल्ली में हरियाणा ने यहाँ पे टॉप पोजीशन सिक्योर करी, ये भी मार्क करके चलेंगे कि किसने मेडल दिल्ली में टॉप पोजीशन सिक्योर करी थी, हरियाणा ने विद अ टोटल ऑफ 105 मेडल्स, ठीक है। और इनॉग्रल एडिशन कह सकते हैं या फर्स्ट एवर एडिशन कह सकते हैं, दिल्ली में हुआ था। ICC इंट्रोड्यूस्ड अ स्टॉप क्लॉक इन मेंस ODI एंड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये स्टॉप क्लॉक क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी कि एक नया सिस्टम इम्पोज किया गया है जिसमें 5 रन की यहाँ पे पेनल्टी लगेगी बॉलिंग टीम को अगर वो 3 बार किसी भी मैच की इनिंग्स में 60 सेकंड से ज़्यादा ले लेती है 2 ओवर्स के बीच में, राइट। मतलब एक ओवर ख़त्म हुआ तो दूसरा ओवर जब आएगा उसको 60 सेकंड के अंदर वो दूसरा ओवर स्टार्ट करना है। अगर वो दूसरा ओवर स्टार्ट नहीं होता है 60 सेकंड के अंदर तो 5 रन की यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी इन पे। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4।
नेक्स्ट नोवैक जोकोविच, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने अभी अपना 7वां ATP फाइनल टाइटल को जीत लिया है, राइट। इन्होंने जेनिक सिनर को, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, इनको फाइनल्स में हराया टू विन हिज 7th ATP टाइटल। जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उन्होंने किनको सक्सीड किया, किनको रिप्लेस किया उस पोजीशन से, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। ये एक स्टैग है, ये एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप किया गया था ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ के लिए, जो कि आपकी लंग्स को इफेक्ट करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। पूछा जा रहा है इनमें से कौन अभी इसके मेंबर बने हैं, तो ये है प्रोफेसर सारंग दियो। ये आपके प्रोफेसर हैं ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड ये 15 मेंबर का ग्रुप रहेगा स्टैग, जिसमें एक मेंबर बने हैं सब प्रोफेसर सारंग दियो। किस टीम ने रिसेंटली 13th एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया? तो हॉकी पंजाब की टीम ने, या पंजाब हॉकी या पंजाब की टीम ने यहाँ पर हरियाणा को फाइनल्स में हराकर 13वां एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है। इंडियन पैरा आर्चरी टीम, इन्होंने टॉप किया मेडल टैली विद अ टोटल ऑफ 9 मेडल्स एट द 2023 एशिया पैरा आर्चरी चैंपियनशिप एंड CQT 2024, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। तो 9 मेडल्स आए हैं इंडिया के एंड इंडियन टीम ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे साउथ कोरिया यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था विद साउथ कोरिया के थे 5 मेडल्स, ठीक है, इन सेकंड पोजीशन। फिर यहीं पे याद रखेंगे इंडिया में से वर्ल्ड नंबर 5 प्लेयर राकेश कुमार ऑफ आर्चरी, करेक्ट, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते इंडिया के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, शिंचुआंग बोगन विलेज कम्युनिटी रिजर्व रिसेंटली न्यूज़, ये कहाँ पर लोकेटेड है? दूसरा, इनसेट 3DS रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो इज व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट? थर्ड, डोगरी फोक डांस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट और यूटी? फोर्थ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? फिफ्थ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर हम डेली बेसिस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.